e-learning class. I am here, Mrs. Bhargav, your science teacher, teaching you the previous chapter 5, materials, metals and non-metals, part 6. Till now we have learned the reaction of metals and non-metals with the acids, with the water. Now the next topic is reaction of metals and non-metals with bases. Now, as we know, when metals react with water, they form their basic oxides. हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ या एयर में एक्सपोज होती है तो दैट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड. Such oxides are basic in nature, and when these oxides are dissolved in water, they form their hydroxide. So here you can see the example given in your book, that is sodium oxide. उसका फॉर्मूला होता है Na2O plus water का फॉर्मूला है H2O, and they together reacts to form sodium hydroxide, that is 2NaOH. So simple word equation will be sodium oxide plus water is equal to sodium hydroxide, and when we write in symbolic form, so it will be Na2O plus H2O is equal to 2NaOH. So this is the most common reaction which happens with the most of the metals. Bases are oxides. Now magnesium oxides, when dissolved in water, forms magnesium hydroxide, and potassium oxide forms potassium hydroxide. Means again these two are the metals. Potassium is very active metal, while magnesium burns in oxygen, it is also forming its oxide. So these are the hydroxides which are bases, or we call them alkali also because they are soluble in water. Here we are talking about these three hydroxides: sodium hydroxide, potassium hydroxide and magnesium hydroxide. Then comes the next. Bases are oxides of metals. Bases को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो metals के oxides होते हैं, and oxygen is a non-metal. Hence oxides of metals are a combination of metal and non-metal. Means जब oxides बनते हैं किसी भी metal के तो वो क्या होते हैं, metal और non-metal का combination होते हैं. Oxides of metal therefore do not react further. Only the base with more active metal replaces the less active metal. अब ये बात इसको समझने की है. जब हम metals के बारे में पढ़ते हैं तो metals have a reactivity series from, जैसे metals को रखा गया है सोडियम से हम नीचे उतरते जाते हैं तो first 3-4 metals are very reactive until that gold and silver when we reach it, so their reactivity becomes lesser and lesser. So it is said, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि oxides of metals therefore do not react. इसलिए oxides जो metals के होते हैं वो react नहीं करते further. Only the base with more active metal replaces the less active metals. केवल base जो अधिक एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है और द लेस एक्टिव मेटल. मीन्स अगर बेस के साथ कोई लेस, मतलब ज़्यादा एक्टिव मेटल का बेस है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इट रिएक्ट्स विद अ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक. अगर ये जिंक से एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, जिंक को रिप्लेस करके एक नया सब्सटेंस बना लेगा और हाइड्रोजन केस विज लिबरेट. So this reaction is given here when the zinc and aluminium show this reaction with sodium hydroxide, a basic solution in water. जब sodium hydroxide का basic solution होता है, water में dissolve sodium hydroxide है, उस समय ये zinc के साथ react करके इस तरह से react करके एक सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है. इनके फॉर्मूले देख लीजिए. दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. NaZnO2 is formed as a result of zinc plus sodium hydroxide.
Zn का फॉर्म, जिंक का सिंबल होगा Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होगा, दे विल फॉर्म Na2 ZnO2 plus hydrogen. Similarly, aluminium reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate and hydrogen gas is liberated. Now sodium is more reactive than these two metals, that is why this type of reaction takes place. क्योंकि सोडियम इन दोनों मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऐसी रिएक्शन होती है. Now reaction between non-metal and bases are complex, though some non-metals do react with a base like sodium hydroxide without producing hydrogen gas. अब जो नॉन मेटल्स के साथ बेसिस की रिएक्शंस है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, एंड दैट यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस, बट राइट नाउ यू शुड नो कि दे ऑल्सो रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स एंड सम सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से नॉन मेटल्स नहीं रिएक्ट करती हैं, एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी नहीं प्रोड्यूस करती जैसा कि मेटल्स करती थी. तो ये क्या डिफरेंस हुआ नॉन मेटल्स और मेटल्स का रिएक्शन विथ बेसिस. नाउ वी विल लर्न अबाउट द अल्कली. Sometimes base and alkali are used, the terms which are for the hydroxides of the metals. But the difference between a base and alkali और base में क्या difference होता है? जैसे कि हमने आपको बोला कि बेस और अल्कली दोनों ही ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटल्स के. ठीक है, यहाँ तक दोनों का ये कॉमन पॉइंट है. बट द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अल्कली इज़ दैट, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि बेस जो होता है इज़ दैट बेस इज़ वीक एंड अल्कली इज़ स्ट्रॉन्ग. बेस कितना क्या होता है, वीक बेस होता है एज कम्पेयर टू द अल्कली. लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है अल्कली बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, वाइल अदर हाइड्रोक्साइड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये थोड़े से वीक बेसिस हैं. और उससे भी आगे जाएंगे हम लोग तो और बेसिस हमको मिलते हैं, तो दे आर लिटिल बिट वीकर बेसिस. तो ये डिफरेंस है बेस और अल्कली में. बेस क्या है, वीक बेस है, वीक है, और अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग इन रिएक्शन. दूसरी बात, ऑल बेस इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, मीन्स थोड़ा सा वाटर में सॉल्युबल होता है, जब अल्कली इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस. बेस वाटर में थोड़ा सॉल्युबल है, स्पैरिंगली कहा जाता है इसीलिए इसको, और अल्कलीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम. अब ये ऐसा होता है जो कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, इसलिए दोनों के पीएच में भी डिफरेंस होता है. अब आप भी सोचेंगे पीएच क्या होता है. पीएच इज़ नथिंग बट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड. उससे ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है. समझ में आई बात. एसिड और बेस हमने पढ़े, पर पीएच की वैल्यू से हमें इसके बारे में पता चलता है कि कोई भी बेस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है. अब हमको ये सब पढ़ने के बाद एक चीज़ को और जानना चाहिए, दैट व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So more reactive elements displaces rest. जब अधिक रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So this is all about today's. We will see in the next video, the next part of this chapter. Now I hope you must have understood how bases are reacting with metals, how non-metals are reacting with bases, what is the difference between base and alkali.